So friend, if you have remember, yesterday I have given an important homework for you all. That what is the difference in different kind of beams. So I hope you have completed that. How many of you have completed? Just say yes in chat box. How many of you have given some time on different types of beam, S type, T types, W types, whatever it is, I type. So you have learned something. Just say yes in chat box. Am I audible? Am I audible? Just say yes or no. Student, just say yes or no if I am audible or not. Okay, I am audible finally. So just let me know you have given certain time yesterday for learning of different kind of beams. Okay, not a problem. And in today's session, yeah, Vaishali, thank you. Thank Vaishnavi, thank you. आपने सीखा है, that is the good thing. Jagdish also very good. So today what we are going to do, actually today we are going to design and analysis a single story, complete single story building. How many of you is already aware about AutoCAD? AutoCAD, say yes. If you are aware about AutoCAD, say yes. Pallavi, Atharva, Bhojraj, okay, Harsha, Pragati, Shivaji, Mayuri, Praveen, great, Shruti, Rohit. Okay, fine. So if you have know already about AutoCAD, so we can understand that we can import the design from AutoCAD into the STAAD for the purpose of analysis. Okay, so today I have a board here also. If something important, I will write here, you can see. And for your comfortability only, I have given this. I have put the board here only, whiteboard. So friends, let's start the session. This is so STAAD window is showing to you all. Just say yes in chat box. STAAD window if it is showing to you all. Okay, fine. I got it. Okay friends, let's start for today. In yesterday's session, we have seen that how we can design any structure, that is what combination of beam and column. And today I am going to perform how to design and analysis a single story building. So for single story building, what we need to do? पहली बात तो यह है कि अगर कोई घर है एक फ्लोर का, तो बीम और कॉलम के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके पास दीवार होनी चाहिए और छत होना चाहिए. जब तक छत और दीवार नहीं होता हम उस स्ट्रक्चर को घर नहीं बोल सकते. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन a building with these two aspects. So just go into the new project like a previous one. I have clicked here. You need to click on space
and just say yes. And here unit is also important, बिकॉज घर छोटे छोटे एकदम से नहीं होते, तो इसलिए हमने इंच में, फुट में, मिलीमीटर में नहीं रखा. फुट में आप रख सकते हो. देन आपको कीप द सेकेंड वन इज किलो पाउंड, फुट एंड किलो पाउंड, एंड हियर मीटर मीन्स किलो न्यूटन. So load also are very heavy, distance also is not very small, so I have keep it on meter and kilonewton, and just say next. Now here you can write single story building. Single story building. So I have already that file here. Just say next and finish. So today's project is what? It depends upon how we can design a single story building. So for single story, friends, yesterday I have designed structure with the help of this graph paper. This is called a grid paper, और आप ऐसी भाषा में इसे क्या बोलते हैं कि ग्राफ पर डिजाइनिंग करते हैं. सो दिस इज ए ग्रिड पेपर. सो आज हम लोग ग्रिड पेपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे. आज हम आपको एक दूसरा मेथड बताते हैं डिजाइनिंग के लिए. सो आई विल क्लिक हियर, एनीवेयर यू कैन क्लिक ऑन द grid paper, and from here just untick it, and when you will untick it you will get a dot here. Okay, so we will take a here, from here this is called node cursor. That means with the help of node cursor we can select it. This is what beam cursor. That means with the help of beam cursor we can select the beams. With the help of plate cursor we can select the plates. With the help of surface cursor we can select the surfaces. With the help of solid cursor we can select the solid geometry. So here they are different kind of. This is what views are here. That means we can show the different kind of views, and we will use some other features today. Let's see. So we'll take a node cursor and we'll click on that. When you will click, that black color dot has converted into the red color. That means अब वो select हो चुका है. इसके बाद हम क्या करते हैं? Selection के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और करेंगे कॉपी. यहां से फिर से राइट क्लिक करेंगे, यहां पे आता है पेस्ट नोट्स. पेस्ट कर देंगे हम सिंपली. किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर पर. एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर पर हमने इसे एक दूसरे नोड को पेस्ट करते हैं. से इट ओके. सो यू कैन सी 1 डॉट हियर, 1 डॉट हियर. ओके, अगेन we will click here, copy this node, right click and paste. Just click on 3 meter. और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक कॉपी और पेन भी लेकर बैठे साथ में, ताकि स्टेप्स को नोट डाउन कर ले. उससे क्या फायदा होगा कि आप अपने सिस्टम में जब भी आपको मौका मिलता है आप परफॉर्म कर सकते हैं. सो यू कैन सेलेक्ट कॉपी हियर again and right click paste nodes. This direction only 3 meter. That means symmetrical. I am going to design it. And now we will select 3 nodes and will paste in which direction? In Z direction. We'll take a 3 meter. We'll say OK. And here local nodes had been ignored. No problem. Just copy it and paste in Z direction. We'll take 3 meter. Copy it. Paste in Z direction, and we'll take a 3 meter. So here you can see we have designed the 336. Now
control, select this one and select this one. I have selected. Now we will do control V. From control V also we can do it. Control V means paste. Z direction 3 meter. Here you can see duplicates nodes has been ignored. That means what? These are not the original nodes. So select one by one, copy it and paste. In which direction? In Z direction will take a 3 meter. Control C, copy and paste. Z direction 3 meter. Copy nodes and paste in Z direction. And also you can copy this, Control C and Control V in X direction 3 meter. So here you can see we have designed this. Design the base only. Now what we need to do? We need to connect this node to this node, this node to this node, this node to this node. Guys, let me know. This is visible to you all? Just say yes if it is visible to you all. No sir, it's not visible screen sir. Okay, that means stat window is not visible, right? Yes sir. Okay, just wait. I will share it again. That's what I want to know. Now it is visible. Stat window is visible. Now it is visible now, everyone. Okay. So we need to join this one to this one, this one to this one, this one to this and all. So we will take which cursor? Here. Add beam. That means क्या है? हमें इन दो नोड्स के बीच में, इसके और इसके बीच में हमें बीम ऐड करना है. तो कैसे करेंगे? यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देन यहाँ से यहाँ क्लिक कर देंगे, देन यहाँ से यहाँ क्लिक कर देंगे, देन यहाँ से यहाँ, और इस पॉइंट को वी विल कनेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. Again take line beam from here to here, here to here, and here to here, and this point to we need to join from there to there, here to here, and this point to this point. So we have joined all. Yes or no? We have joined this, yes? Okay, got it. And now what we need to do, if we have joined this, again we will take a node cursor. We'll take a node cursor and we'll select all. Okay? And after selection, I will see Control C from keyboard, copy, and Control V. And for this time I will paste the node in y direction with the sign of minus. माइनस क्यों? बिकॉज हम इसके नीचे जा रहे हैं. ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके नीचे जाएंगे तो माइनस में आएगा, इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस में आएगा. सो आई विल टेक -5 मीटर.
3 meter for flooring and 2 meter for I am giving the foundation. You can understand. So just say okay. Here you can see the notes had been pasted here. Yes or no? So we will go into the select geometry. Here you can see what the things we can do it. And in geometry, connect the beams parallel to x, y, z axis. Here it is given. So when you will select this all and will go into the geometry, then we can connect the beams parallel to go into the geometry, connect the beams parallel to y axis. See, in one time we have connect all the beams parallel to y axis, and upper side we have already joined. So with the help of this things, here what we can do already, we have created the geometry. We have created the geometry here. Now after creation of geometry, what the things we can do? We have created the geometry now. See the different views from the different sides. This will look like this. This is the front view, and this is called isometric. So here we have created isometric views. Okay friends, now what we need to do again I would like to do it for you once more. We have designed this one. See, up to this point you understand. Let's revise it again. We will select all. How you can do this? Control C, Control V. In Y direction, we'll give -3 meter or 4 meter, 5 meter, whatever you want. So we did this. Again we will select it. Either you can perform it with the help of add beam. See, you can connect this point to this point manually. But if you don't have much time, what you can do? You will go into the geometry and will connect the beams parallel to y, beams along to y axis, and we have connected. So this is what how we can perform. और मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो देखना जरा. इसके बाद हम लोग पहले सपोर्ट जनरेट कर देते हैं. वी विल गो इनटू द जनरल. जनरल में जाने के बाद हम सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. और ये सपोर्ट कैसे प्रोवाइड होगा यहां पे देखिए. विल क्रिएट हियर. फिक्स सपोर्ट है ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम, ऐड कर देंगे. विल क्लिक ऑन सपोर्ट. अब ये सपोर्ट आप कैसे असाइन करते हैं, आई विल गिव यू द मेनी एग्जांपल्स. सो सपोर्ट हमने किया एंड यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है यूज कर्सर टू असाइन. सो जस्ट क्लिक ऑन असाइन एंड आई विल यूज कर्सर फॉर असाइनिंग. I will use my cursor for assigning a supports. Yes. So I have assigned it. You can see here. Now do the Control Z, Control Z, 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 Z. अब हम दूसरा तरीका आपको सिखाते हैं. अभी देखो यहाँ पे नोड सिलेक्टेड है ना ऑलरेडी. नोड को हमने सेलेक्ट कर रखा है, तो आप यहां पे डायरेक्टली क्लिक कर दो असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स. ओके, एंड असाइन. देखो एक साथ आ गया.
फिर हम इसे करेंगे कंट्रोल जेड। देखो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जाएंगे फ्रंट व्यू में। अगेन कैसे कर सकते हैं, यहां से एक साथ सिलेक्ट कर लिया, सॉरी ये सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने नोड कर्सर नहीं लिया है। अब हमने यहां से नोड कर्सर लिया, एक साथ सिलेक्ट किया, असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स असाइन कर देंगे पहले जैसा, सारा कुछ हो गया है। सी वी डिड दिस। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये अपने को समझना है। देखो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां हमने अभी ये प्रोवाइड कर दिया। अब चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसका फ्लोर कैसे डिजाइन करेंगे। फ्लोर डिजाइन करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स है। अब लोग इधर जाएंगे, कहां पे, इस पॉइंट पे, जनरेट सरफेस मेशिंग, वी विल क्लिक ऑन दैट। या तो हम सरफेस मेशिंग करें, वी आर डूइंग दिस। हमने इस सरफेस को मैश कर दिया है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर टाइप का दिख रहा है। यस फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा है ना। सो वी हैव मैश द अपर सरफेस। नाउ what we need to do, यहां से अगर आप बीम कर्सर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सी थोड़ा छोटा करके, यहां पे आप देखेंगे तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, देख रहे, क्योंकि अभी हमने इसको कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है, ठीक है। अब देखो इस टाइप का दिख रहा है आपको छत के साथ में, लेकिन अभी हमने इसे कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, तो ये दिखना तो स्टार्ट हो गया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से। अब इसके बाद हमारा काम क्या है कि हम लोग इसे कुछ प्रॉपर्टी दे दें। अब प्रॉपर्टी कैसे देंगे, हाउ वी विल प्रोवाइड द प्रॉपर्टी, जस्ट सी हियर। स्टडी हमने आपको सिखाया था अलग तरीके से, आज हम आपको यहां से देखो कमांड बार में आप कैसे जाके प्रॉपर्टी देते हैं। विल गो इनटू द वेयर प्रॉपर्टी। आप यहां पे यूजर डिफाइंड टेबल होता है, वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये वाला पोर्शन आया। जैसे हम यहां पे जाएंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे सेक्शन डेटाबेस पर। सबसे पहले जब हम सेक्शन डेटाबेस पर क्लिक करेंगे तो आएगा कि आप कौन से सेक्शन के साथ चलना चाहते हैं, तो वी विल क्लिक ऑन इंडियन फर्स्ट। और यहाँ पे हम लोग आई शेप लेते हैं आज, और एक ये सेलेक्ट कर लेते हैं। और हम ये आज कल स्टील किया था, आज कंक्रीट करेंगे। ऐड करके क्लोज कर दिया सेक्शन डेटाबेस। अब हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम बीम और कॉलम को रेक्टेंगुलर ले रहे हैं, ले लेते हैं। एंड विल डू द 0.25 एंड 0.35 या 0.30। विल ऐड हियर एंड क्लोज, ठीक है। एंड नाउ अभी हमें जो ये प्लेट हमने डिजाइन किया यहां पर, इसका हमें थिकनेस देना है कि कितनी मोटी छत आपको बनानी है। सो विल क्लिक ऑन थिकनेस,
और यहां पर आपको प्लेट का वो दे देना है, तो हम इसे दे रहे हैं 0.15 मीटर और हम इसे ऐड करके यहां पे क्लोज कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो क्लोज ये। सो वी हैव असाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर स्ट्रक्चर। अभी आप देखें, वी हैव क्रिएटेड एंड नाउ वी नीड टू असाइन इट। एंड सेलेक्ट ऑन दिस। अब आप इसे कैसे असाइन करेंगे? सेलेक्ट ऑन दिस, वी विल असाइन टू व्यू। सफूरा, Safura, what you are doing? Safura, don't play with the screen, beta. Safura, don't play with the screen, right? Okay, let's come on this point. We will click on this point and will assign to view. We have assigned this. Or Control Z. Just delete it for a minute. Assign the section database again. We'll take a concrete. Go on the section database. Now we need to select the beam and columns only. Keep it here. So we will go into the beam cursor. We'll select the beam and columns, and here assign to selected beams only. Assign कर दिया. So we have assigned this. Now this one, this is also for beam and column. We'll select. We'll assign to selected beams and columns. We have assigned plate thickness. For this we need to take a first plate cursor. We'll select this here and we'll select the plate. अभी हमने प्लेट सेलेक्ट कर लिया, अब हम असाइन कर देंगे. सो हमने असाइन कर दिया प्लेट को. अब असाइन करने के बाद, आफ्टर असाइनिंग द प्रॉपर्टी, गाइस हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर इज रेडी. यस, स्ट्रक्चर रेडी हो गया. जस्ट सेव इन मैसेज. स्ट्रक्चर हैज बीन रेडी. ओके 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 ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. मजा आ रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? Very right, very good, very 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 good, very good. Very good. So let's back on our task. We have reached up to this point, and you can see we have created a structure. आप ऐसा स्ट्रक्चर अपने शहर में देख सकते हैं, जब हमने यहाँ पे कॉलम्स बना दिए 3 3 6, और फिर हमने बीम
बीम्स ऊपर बना दिए और उसके बाद हमने इसका छत बना दिया। तो इससे क्या होता है, पहले हम लोग यही तैयार करते हैं। अब जिस तरीके से दोस्तों हमने ये तैयार किया था छत, सेम उसी तरीके से आप इसका वॉल भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको चारों तरफ से ढकना है तो इसी की हेल्प से आप वॉल तैयार कर सकते हैं। और ये वॉल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, थिकनेस को थोड़ा हल्का रखेंगे या इस छत से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मतलब इन बीम्स के बीच में ही होना चाहिए, कॉलम्स के, कॉलम से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए थिकनेस, नहीं तो आपका डिजाइन बहुत बुरी दिखेगी। और चूंकि वॉल पे कोई लोड नहीं होता है, वी आर डिजाइनिंग द वॉल जस्ट फॉर कवरिंग द स्ट्रक्चर। वॉल हम इसलिए नहीं डिजाइन करते कि उस पर कोई लोड लगेगा। अब आप खुद ही ध्यान से देखिए, यहां पर हमने एक बीम बना दिया, ये हमने कॉलम बना दिया। अब इसके बीच में जो मेंबर आएगा, क्या उस पर लोड होगा? उस पर लोड नहीं होगा ना गाइस, बिल्कुल लोड नहीं आएगा। ग्रेट। तो जब लोड नहीं होगा उस पर, तो हम लोग उसे उतना मजबूत क्यों बनाएंगे, है कि नहीं? पुराने समय में क्या होता था, चोर लोग आते थे और दीवार तोड़ के अंदर जाके सामान निकाल के लेके भाग जाते थे। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, इस वॉल को बहुत मोटी बनाते थे ताकि चोर लोग इसे तोड़कर अंदर ना आए। तो अभी वैसी समस्या तो रहती नहीं है, इसलिए क्या होता है, हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और वॉल को उतना मजबूत नहीं रखते हैं। और अभी हमारे पास चूंकि मटेरियल में अच्छा रिसर्च हुआ है, तो मटेरियल अपग्रेडेड हो गए, उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, मजबूती अच्छी हो गई और जल्दी से टूटते नहीं है। तो इस हिसाब से वो चीज काफी अच्छी है। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। अब और आगे देखते हैं हम लोग कि इसे और बेहतर कैसे बनाएंगे। यहां पे जाने के बाद सपोर्ट तक हमारा काम हो गया था, ज्योमेट्री हो गई हमारी, देखो ये ज्योमेट्री रेडी है। जनरल में हमने ये सारी चीजें रेडी कर रखी थी। उसके बाद हम सपोर्ट में गए, ये तैयार कर दिया। सपोर्ट के बाद अब हम लोग जाते हैं लोड एंड डेफिनेशन। देखो हम सीरीज में चल रहे हैं, पहले सेटअप तैयार करते हैं कि भाई आप ये देखो, इस सेटअप में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जॉब क्या है लिख सकते हैं, क्लाइंट का डिटेल लिख सकते हैं, जॉब का नंबर कितना है 1 2 5। गाइज हमारी स्टार्ट प्रो की स्क्रीन दिख रही है? ओके, वेट वेट वेट, we'll go on window, we'll select this, अभी सबको दिख रहा है? ओके ओके ओके, ठीक है, चलो सीखते हैं। अब दिख रहा है तो सीखते हैं आराम से। अगर आप लोग कॉपी पेन लेके ना बैठते हो तो फ्रॉम टुमारो यू विल यूज कॉपी पेन ऑल्सो। ओके, संकेत, शिवाजी, काजल, स्वप्निल, सैयद, शाना, प्रीति। प्रीति छोटा सा यस लिखोगे तो भी समझ में आएगा। है गुस्से में कीबोर्ड दबा रहा है, यस। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखते हैं अब हम लोग क्या करेंगे। ये जॉब का क्रिएट करने के बाद हम लोग इसमें जाते हैं ज्योमेट्री में। हमने ज्योमेट्री तैयार कर दिया अपने कस्टमर के हिसाब से। फिर हम लोग जनरल में जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं फ्रेंड्स। देन हम लोग सपोर्ट में जाते हैं कि स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कर दे। देन हम लोग लोड एंड डेफिनेशन में जाते हैं। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग
लोड भी असाइन करते हैं। देखो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन में क्या क्या है। सी यहां पर है व्हीकल डेफिनेशन। व्हीकल डेफिनेशन हम कहां पे यूज करेंगे, सब लोग इसे ध्यान से समझेंगे। व्हीकल डेफिनेशन कहां पे हम लोग यूज करेंगे? व्हीकल डेफिनेशन हम वहां यूज करेंगे जहां पर व्हीकल का एप्लीकेशन होगा। जैसे कि अगर हम ब्रिज बना रहे हैं तो उस पर से पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे कुछ व्हीकल क्रॉस करती हैं, तो इस व्हीकल के डेफिनेशन को पहले हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके लोड को कंसीडर करेगा यह सिस्टम। और टाइम हिस्ट्री डेफिनेशन, टाइम हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग यहां पे जाते इसको ऐड करते हैं, आप देखो जरा, हमने इसे ऐड किया तो ये क्या पूछ रहा है? टाइम हिस्ट्री। सी यहां पे पीरियड दिखा रहा है, यहां पे एक्सेलरेशन दिखा रहा है, मतलब कितने समय तक कोई भी पर्टिकुलर बॉडी ब्रिज के ऊपर बनी रही है, एक्सेलरेट कैसे किया, कितने एक्सेलरेशन के साथ आपके ब्रिज को क्रॉस किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग वो सारी चीजें इंटर करते हैं, वो जरूरत तब पड़ती है जब हम व्हीकल का डेफिनेशन उसमें ऐड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है विंड डेफिनेशन। अब हम इसमें विंड का लोड रखते हैं, कैसे करते हैं? अब ऐसे विंड को आप ऐड करोगे यहाँ पे तो ये ऐड होता है, ठीक है, साथ में कुछ प्रॉपर्टी जाती है। स्नो डेफिनेशन, अब ये स्नो डेफिनेशन हम कहां पे लेंगे? स्नो डेफिनेशन हम वहां पे लेते हैं, कल मैंने आपको बताया था, जहां पे स्नोफॉल होते हैं। तो वो एक तरह का एडिशनल लोड है फ्रेंड्स, कि आपका कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर बिल्डिंग है और सिंगल फ्लोर, और अगर वो आप कश्मीर में अभी आप शादी वादी करके मान लो उधर जाके सेट होते हैं, है कि नहीं? कितने लोग कश्मीर में सेट होना चाहेंगे? कश्मीर में कौन कौन सेट होना चाह रहा है? नहीं होना है? आदित्य, अरे अभी नहीं, मैं कह रहा हूं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आप लोग पढ़ाई पूरा करेंगे, उसके बाद शादी वादी होगी, तो आप अपनी वाइफ के साथ उधर जाके सेट हो सकते हैं, समझ रहे हैं? बाद में हाँ, सफूरा उस्मानाबाद में सेट है। ओए रोहित, रोहित पढ़ाई तू कम कर रहा है, जीएफ के साथ सेटल होना है तुझे उधर, है? तो पास में होता तेरा कान खींचता मैं अभी आज। भगवान ने बाल बाल बचाया तुमको। हाँ, ये बात भी सही है, पहले जॉब करना फिर। अब इधर आते हैं, तो अब स्नो डेफिनेशन तो हो गई, उसके बाद है रेफरेंस लोड डेफिनेशन। अब इसे ऐड करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। किस लोड के रेफरेंस में आपको लेना है कोई लोड, डेड लोड के, लाइव लोड के। अब अच्छा, इसको कैसे करेंगे दोस्त, जरा समझो। रेफरेंस लोड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने घर पे ऐसे बहुत सारे, आपने स्ट्रक्चर तो तैयार कर दिया, उसका डेड लोड भी आपने ले लिया है, ठीक है। अब रेफरेंस लोड, अगर डेड लोड के रेफरेंस में आप ले रहे हैं तो क्या होता है? जैसे कि हमने एसी फिट कर दिया, अब वो तो मूव कर नहीं रहा है, एक जगह पे फिक्स हो गया, तो वो जो एक्ट कर रहा है वो डेड लोड के रेफरेंस में हो गया, कि वो दैट वी कैन कंसीडर विद रेफरेंस ऑफ डेड लोड। इसी तरीके से जो चीजें आपने वॉल पर फिट कर दी है परमानेंटली, वो सब डेड लोड के रेफरेंस में आ जाता है, और अदर जो सामान आप रखते हैं वो लाइव लोड के रेफरेंस में आता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी ऐसे समझते हैं रेफरेंस लोड को। उसके बाद है सिस्मिक डेफिनेशन। ये इसका मतलब क्या है कि भूकंप का केस आप कैसे लेंगे, किस तरीके से डिफाइन करेंगे। 185 के हिसाब से चलेंगे, कैनेडियन, और इधर देखो बहुत सारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेंगे। देखो जोन आपको कौन सा लेना है, वैल्यू कौन सी लेनी है, हम लोग ये सब यहाँ पे कर सकते हैं, और एक ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि जहां पर अगर भूकंप आए तो वो गिरे नहीं, जान मान के खतरे को हम लोग यहां से कम कर सकते हैं। और ये पुश ओवर में क्या आता है, यहाँ पे देखो जरा,
कि भाई किस तरीके से आपके फ्रेम पर ज्योमेट्रिक नॉन लीनियर इफेक्ट, टाइप ऑफ फ्रेम्स, डिस्प्लेसमेंट, किस तरीके से ये चीजें एक्ट कर रही हैं, हम लोग उसको उसके अंदर में रखते हैं। और ये है डायरेक्ट एनालिसिस डेफिनेशन, कि अगर आपको डायरेक्ट एनालिसिस करनी है तो किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। खैर, अब ये डेफिनेशन तो हम तब जाएंगे जब इस तरीके की लोडिंग की एनालिसिस करेंगे। अभी हमें ये बदमाशी कौन कर रहा है? फ्रेंड्स, मैंने बोला कि आप स्क्रीन के साथ नहीं खेलेंगे ना, फिर भी आप खेल रहे हैं। आप स्क्रीन के साथ नहीं खेलिए। अभी सबको स्क्रीन दिखने लगा है? स्क्रीन दिखने लगा सबको? हाँ, ठीक है। कोई अपने स्क्रीन के साथ खेलेगा नहीं। डोंट प्ले विद योर स्क्रीन, ओके? आप बिल्कुल शांत होकर सुनिए। जब आप शांत होकर सुनते हैं तो आउटपुट बढ़िया रहता है। चलो, हम लोग आगे चलते हैं अपनी। तो यहां पर अब विल गो इनटू द लोड केस डिटेल एंड विल ऐड इट। क्या हमने ऐड किया? पहले हमने डेड लोड ऐड किया। यहां पे हमने लिख देंगे कैपिटल में DL, डेड लोड ऐड कर दिया। दूसरा लोड कौन सा? हमने लाइव लोड ऐड कर दिया, लाइव लोड LL ऐड करके क्लोज कर दिया। तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग दो लोडों को कंसीडर किए हुए हैं और इसकी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। सो ये डेड लोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर ऑप्शन यू विल शो ऐड। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये डेड लोड कौन सा है दोस्त? ये सेल्फ वेट है। इसको सेल्फ वेट लो और -10 कर देते हैं हम लोग इसे, और ऐड कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आता है लाइव लोड, को ऐड कर दिया हमने। ये लाइव लोड हमारे मेंबर पे जाएगा और ये कितना है, हमने 5 दे दिया या 2 दे दिया है। और ये डायरेक्शन हमेशा ग्लोबली डाउनवर्ड रहता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डाउनवर्ड। और फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस साइन लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो लोड को ऊपर की तरफ लगेगा, जो कि होता नहीं है। तो माइनस साइन वी विल ऐड हियर, ऐड एंड क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये आया। अब हमें इसे असाइन करना है सेल्फ वेट। इसे हम सीधा कर देंगे असाइन टू व्यू, और असाइन कर दिया। देखो सब पे लग गया है। उसके बाद ये वाला है, इसको भी हमें असाइन करना है। असाइन कहां पे करेंगे? ये मेंबर लोड है, तो मेंबर लोड को हम लोग बीम्स पे लगा देते हैं। असाइन कर दिया हमने, यस। सो यहां पे आप देख सकते हो कि ये मेंबर लोड वहां पे लग गया है, राइट? आप यहां पे देखो, मैं इसको जूम कर रहा हूं और मेंबर्स के ऊपर देखो, बीम और कॉलम्स पे ये लोड लग गया है। और अगर हम सेल्फ वेट देखेंगे तो ये सेल्फ वेट जो है सब पे लगा हुआ है। और मेंबर वेट देखेंगे तो ये भी यहां पे लगा हुआ है। सी, सो ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके का जो हमने ये तैयार किया है, सो दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। और ये डिफरेंट कलर में हमेशा आता है कि आप देख सकते। तो फ्रेंड्स, यहां लोडिंग तक आप सबके समझ में आया है? जैसे यस, लोडिंग तक सबके समझ में आ गया है? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? एक्चुअली में एक सिविल इंजीनियर के लिए इससे बढ़िया एक्साइटिंग चीज कुछ होता ही नहीं कि आप अपने कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, बना रहे हैं अपने हिसाब से, यू आर चेंजिंग इट एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड ऑल। सो ये बहुत बढ़िया रहता है कि आप अपने हिसाब से इसे डिजाइन करते हैं। अविनाश मयूरी,
चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। हाँ, ये कलर ऑटोमेटिक ले लेता है, बट आप अंदर का कलर चेंज भी कर सकते हैं। पल्लवी, यू आर आस्किंग अबाउट डायरेक्ट एनालिसिस। डायरेक्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट, आप यहां पर जाइए, ये देखिए, ये है डायरेक्ट एनालिसिस डेफिनेशन। आप ऐड करके देखिए क्या आ रहा है। फ्लेक्स पैरामीटर, एक्सियल पैरामीटर, और ये, इसमें हम लोग एक साथ ही इन चीजों को डिफाइन कर देते हैं, और डिफाइन जैसे ही करेंगे वो एनालिसिस पे चला जाएगा। तो इट नीड्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर अप्लाइंग ऑफ दिस थिंग्स। तो अभी हमारा प्रैक्टिस नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे। इवन आप बिना इन सब चीजों का यूज किए हुए आपको कितनी चीजें यूज में आएंगी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सिस्मिक आने वाला है, एक व्हीकल आने वाला है, एक ये आने वाला और एक विंड आने वाला है। स्नो और बाकी चीजों का जो डेफिनेशन है वो बहुत कम आने वाला यूज में, बहुत ही कम, रेयर केसेस होंगे। सो लोड के बाद हम लोग अपने स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आप यहां पे देखो, लोड एंड डेफिनेशन में यहां पे क्लिक करोगे, यहां पे क्लिक करोगे, यू विल गेट द डिटेल्स अगेन। ये देखो कि हमने बीम एंड कॉलम्स पे किस तरीके से लोड अप्लाई किया हुआ है, वी कैन अंडरस्टैंड। ये सी, और ये लोड आपके हिसाब से चेंज भी करता है। आप चाहे तो इस लोड को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन। और आप फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे, सपोज हम कोई एक और लोड, डेड लोड में कोई और एक लोड ऐड करते हैं, मान लेते हैं, तो आप जैसे मेंबर लोड पे क्लिक करेंगे ना, तो अब इसमें कौन सा लोड आप ले रहे हैं? मेंबर लोड में पहले ही यूनिफॉर्म फोर्स आ रहा है, आप यूनिफॉर्म लोड ले सकते हैं। और यहाँ पे एक और है यूनिफॉर्म मूवमेंट, आप मूवमेंट भी दे सकते हैं, कितना मूवमेंट लग रहा है। या आप यहाँ पे देखिए कंसंट्रेटेड फोर्स का एक ऑप्शन है। कंसंट्रेटेड फोर्स मींस दैट इज एक्टेड एंड पिन डाउन ओनली वन पॉइंट, और 1.2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे करके पिंड है। अब वो कैसे हम लोग समझ सकते हैं, मैं आपको यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल के साथ, जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, इसी सेंटर पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम लोग इस सेंटर पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स दे देंगे। और यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि दैट मीन्स ऑन पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन असाइन द लोड सर। सो दिस इज द सिंपल थिंग। अब यहाँ पे लोड को एनालिसिस तो हमने यहाँ पे कर दिया है, आप देख सकते हैं, सॉरी, लोड को हमने असाइन कर दिया। आफ्टर असाइनिंग द लोड व्हाट वी नीड टू परफॉर्म, अब आपके दो लोड हो गए हैं, क्या आपको तीसरा लोड भी ऐड करना है? अगर ऐड करना है तो हमें लोड केस डिटेल में जाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहां से इतने सारे लोड हैं, आप कोई सा लोड इस पे ऐड कर सकते हो, बस ध्यान रहे कि लोड का नेचर हमें पता होना चाहिए कि विच, अभी जैसे हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट में विंड का कर सकते हैं, और स्नो वगैरह का ले सकते हैं, फ्लूइड का ले सकते हैं, रेन को कंसीडर कर सकते हैं, ट्रैफिक को कंसीडर कर सकते हैं। ट्रैफिक मींस व्हीकल या आदमी जो पैदल चलते हैं। हुमेरा शेख, आप बदमाशी कर रही हो, आप ये कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, अभी हमारा प्रेजेंटेशन रुक जाएगा इससे। चलो हम लोग क्या करते हैं, अभी दूसरा प्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट अभी विजिबल है? जस्ट से यस। अरे हमारा क्लास तो आप ले ही रहे हो पुत्र, इतना ज्यादा क्यों?
हमारा क्लास ही आप ले रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं ये क्लास 10 दिन 15 दिन चले, आप पूरा अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आपको हम यहाँ से ऑफिस से एक लिंक भिजवा देंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उधर, और रजिस्ट्रेशन के बाद आप फुल कोर्स कर सकते हैं। आप कितने लोग चाहते हैं फुल कोर्स करना? फुल कोर्स किसको चाहिए? फुल कोर्स मतलब सब कुछ जिसमें रहे। सब लोग फटाफट मैसेज करो कितने लोगों को चाहिए। एंड ज्योति मैम प्लीज रिकॉर्ड द नेम ऑफ दीज स्टूडेंट्स। ओके वैष्णवी, साजिद, ज्योति ये ज्योति हमारी वाली है या आप वाली है? कहाँ की है? सब लोग सबको वेरी नाइस वेरी नाइस। श्रद्धा, मिशल, प्रजक, पल्लवी, ठीक है, हम आपको एक लिंक भिजवाएंगे। पल्लवी मैंने सुन लिया, आपको भी सीखने को मिलेगा। रोहित, मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूं, मैं 8 सालों से यही काम कर रहा हूं पुत्र, बढ़िया तो होगा ही। रोहित सोमवंशी सर, मैं तो अभी आया हूं, तू हमेशा लेट रहता है। रोहित, चलो हम लोग आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। अभी पहले इसे कंप्लीट करेंगे, फिर हम आप लोगों से बातें भी करेंगे। सी हियर, अब लोड के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? लोड के बाद हम लोग जाएंगे एनालिसिस में। एट दिस पॉइंट एनालिसिस के पहले भी यहाँ पे एक कॉलम है डिजाइनिंग का, आप इस पे क्लिक करके देखें जरा क्या आता है। हम लोग डिजाइन पे जाएंगे तो क्या होता है, यहां पर ये कह रहा है कि आप पैरामीटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट पैरामीटर्स, जैसे आप कौन से लोड को लेकर के डिजाइनिंग कर रहे हो, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जब हम लोग रियल पैरामीटर्स में जाएंगे तो हम लोग इन चीजों को, जैसे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी स्टील को चाहिए सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। देख रहे हो, एक्सियल पैरामीटर्स, वी कैन सिलेक्ट दिस लाइक दिस। डिफाइन पैरामीटर्स को आप डिफाइन करना चाहते हो तो यू कैन डिफाइन हियर ऑल्सो। एंड ये सर्टेन कमांड्स आर देयर हियर कि आप क्या क्या चीजों को चेक कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक दैट। सो हम लोग इसे भी सीखेंगे पूरी तरीके से। और इसके बाद सबसे बढ़िया क्या होता है कि अगर आपको अच्छे से आता है, यू कैन परफॉर्म वर्क फ्रॉम होम। आप घर पे बैठे पैसे कमा सकते हैं। एंड वी विल सिलेक्ट ऑन ऑल ऐड। प्लीज आवाज नहीं, बीच में कौन बोल रहा है? शांत रहो। नहीं तो वड़ा पाव मुंह में लेके बैठा करो। अभी मिल भी नहीं रहा होगा, अच्छी बात है। एनालिसिस एंड प्रिंट, एंड यहां पे हम लोग जा रहे हैं। अरे हुमेरा शेख, ये लड़की है या लड़का है? पिटेगा हमारे हाथों। जब देखो प्रेजेंट करने लगता है। अभी वापस से दिख रहा है ना सबको? ज्योति मैम, आपने भी कॉपी पेन ले रखा है क्या? सोलापुर को स्मार्ट बनाइए आप सब लोग मिलके, सोलापुर से उस्मानाबाद।
चलिए हम लोग यहां देखते हैं, विल गो इनटू द एनालिसिस एंड प्रिंट एंड रन करेंगे इस स्ट्रक्चर को। सेव कर देते, यस। हमने इसे रन किया, एरर्स नहीं दिखा रहा है, एक वार्निंग दिखा रहा है। हम लोगों ने कोई टास्क रिपीट किए हैं इसलिए वो आ रहा है वैसा। और फिर हम लोग जाएंगे, देखो हमने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं आया। जब एरर्स आता है तो प्रॉब्लम होता है कि हमें दोबारा से करना है या एरर को पहले दूर करना है। एरर तो कोई है नहीं। अब हम यहाँ पे जाते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे क्लिक करते हैं, या आप सीधा आउटपुट फाइल भी अगर आप देखना चाहो तो आपको देखो ये आउटपुट फाइल निकल रही है। अब आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हो, ये देखो वार्निंग में क्या है, ये कह रहा है कि जो 14 और 13 है दे आर सेम जॉइंट्स, ओके नो प्रॉब्लम, कह दो ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, ये हमने रिपोर्ट निकाल दिया है। दोस्तों जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हो तो हैंडमेड रिपोर्ट आपको मिलती है। यहाँ पे आप देखिए, ये आपको कंप्लीट रिपोर्ट मिल रही है ऐसे ही, ये स्ट्रक्चर खुद जब बना के देता है। अब इसमें देखो क्या क्या की चीजें हैं बनी हुई है, मेंबर ऑफ ज्वाइंट, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ प्लेट्स, नंबर ऑफ सॉलिड्स, नंबर ऑफ एवरीथिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। मेंबर लोड कहाँ कहाँ पे कितना लोड लग रहा है, किस किस पॉइंट पे आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें, कितना मूवमेंट आ रहा है वो देख सकते हो, उसका डायरेक्शन क्या है, कहाँ पे कितना मेटल एलोंग हो रहा है, ठीक है ना, सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। आपको अगर वैसा देखना रहता है तो हम आपको देखो अभी पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में ले चलते हैं। यहाँ पे ये देखना हमेशा चाहिए अपने को। हमने दोनों को सिलेक्ट करके अप्लाई करके ओके कर दिया, ये इधर है, ये देखो पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में ओपन हो गया ये। अब आपको बीम्स में देखना है क्या चेंजेस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लेट्स यहाँ पे आप देख ही रहे हो। एनिमेशन अगर आपको देखना है तो हम एनिमेशन में डिफ्लेक्शन सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई करके ओके कर देते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये स्ट्रक्चर पे अगर लोड ज्यादा है तो कहीं ना कहीं से डिफ्लेक्ट करता हुआ दिखता है, तो हमें उस पॉइंट को थोड़ा ठीक करने की जरूरत रहती है। यहाँ पर देखो, और ये डिफ्लेक्शन ऐसा रहता है, अगर आपकी आंख खूब मजबूत है तो दिखता है तो, अगर नहीं है तो नहीं दिखता। और यहाँ पे देख रहे हैं हम जहां तक कि इसमें डिफ्लेक्शंस नहीं है, और वैसे भी हमारे स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए कंक्रीट में। अगर ये हिलेगा तो तुरंत टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, सही बात है ना। आप देखो इसमें रिपोर्ट्स आप अलग अलग तरीके के जनरेट कर सकते हो। स्ट्रेसेस आपको देखना है, देखो कितने स्ट्रेसेस है इधर। स्ट्रेसेस आप इसे जूम करोगे तो यहाँ से स्ट्रेसेस। ग्राफ्स आपको देखना है तो देखो ये लोड हमने लगाया था, ये लोड के हिसाब से वी आर सीइंग द हियर ग्राफ। और वो ग्राफ कौन से हैं, ये सिंगल, ये वेंडिंग मूवमेंट है और शियर फोर्स और वेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। तो आज हमने इस तरीके से देखो एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग तैयार किया। ये बहुत छोटा सा है, और प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहते हैं तो एक पूरा घर इस टाइप का बना सकते हैं और उसके एनालिसिस कर सकते हैं आराम से। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टूल है सिविल के हिसाब से। और इस लॉकडाउन में मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे फिनिश कर दे पूरी तरीके से, कि हर किसी को आना चाहिए सिविलिस्ट। मतलब आप इन इंडस्ट्री कोई सी भी ज्वाइन करो, बिना इसके काम नहीं होता है, आपको ये लेना ही लेना पड़ेगा अपने काम में। एक ये हो जाता है और एक रेबिट हो जाता है। तो हम लोग रेबिट क्या थोड़ा सा एडवांस है, वो बाद में कर सकते हैं। एडवांस का मतलब है कि उसमें भी पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन और एनालिसिस होता है, लेकिन ज्यादातर यही लोग यूज करते हैं। सब लोगों के समझ में आया? एस टाइप, यस।
Very good, very good, very good. Vimal sir, Yes. sir, I think we should go with one digital selfie. If everyone is going to on their camera, we can have one, हाँ हाँ, the layout of, ऑन कर दीजिए ना. yeah, you drop a text. मैं टेक्स्ट ड्रॉप करूं उनके लिए. Yeah. फ्रेंड्स, अपने अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए सब लोग. सब लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए. मैं अच्छा तो लग रहा हूं ना? We'll change with the tile, right? Up, sir. Sir, you change the screen layout. Since you're presenting, let everyone see. हेलो. अभी हम लोग एक छोटा सा और एग्जांपल लेंगे और उसमें एक डिफरेंट काइंड का प्रोजेक्ट किस तरीके से हम लोग करेंगे. वी विल डिस्कस इन 5-10 मिनट्स. हाँ मैम, आप कुछ कह रही थी. आपके स्क्रीन पे पिन कर. मैं पिंड हूं, अनपिन करूं क्या इस टाइप में? ज्योति मैम, आप कैसा चाह रही हैं? Please, you all on your camera if possible from your end. श्रद्धा, कितने प्यार श्रद्धा से सुन रही हो सब. एक्चुअली वी वांट टू टेक अ डिजिटल सेल्फी. ज्योति मैम ने कहा सबके साथ फोटो चाहिए. हाँ रोहित, रोहित तो तूने ऑन कर लिया है. अरे मैं नहीं ले रहा हूं, मैम ले रही है. मैम, और किसको किसको कल वाला लेक्चर देखना है वापस? कल वाला लेक्चर कितने लोगों को देखना है रिवीजन के लिए? ओके, जस्ट डू वन थिंग. कल के लेक्चर को हमने रख दिया है उस पर, YouTube पर है, आप लोग देख सकते हैं उसे. यहां पर जाइए. कल का लेक्चर पूरा का पूरा YouTube पर है. ये हमने लिंक भेजा है, आप इस पर क्लिक करके जा सकते हैं और देख सकते हैं लेक्चर को. मैम, हो गया क्या सेल्फी?
आप तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लेआउट चेंज कर दीजिए। कहां से चेंज करूं? राइट साइड 3 डॉट्स है, देखिए। From हाँ there you आया। हाँ, change it into tile so that everyone can have the selfie. चेंज लेआउट, Into tiled. टाइल्ड कर दिया हमने, बोलो। And share it on your screen. You pin your screen there. Layout. जस्ट अ मिनट। Yeah. अभी सही है? Yes, yes. शिवाजी, अंजलि, I think उन्होंने ऑन नहीं किया है कैमरा। रोहित, गुड। रोहित तेरा बाल अच्छा लग रहा है। अबे Shreya, only these many people are able to see. Sir, just find out whether we can increase the grid of the tile. वो बहुत छोटा हो जाएगा। Okay. अभी एक बार तो ऐसे ही ले लीजिए, ये नंबर तो आ ही रहा है ना। Vaishnavi, Sajid, I want everyone speak so that like we can. Shreya, Mayuri. Yeah, those who want to take this, we can have. Done. Thank you. Right. हो गया मैम? हाँ सर, हो गया। अच्छा लग रहा था क्या मैं? आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं? यू कैन आस्क योर डाउट्स गाइस। विद्या कोई डाउट है? श्रद्धा, कल्याणी, मयूरी, साजिद, प्रवीण, कोई डाउट है? नो डाउट, नो डाउट। आपको हमने यूट्यूब लिंक भेजा है ना, यू कैन सी द यस्टरडे सेशन कंप्लीट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां सिविल के बहुत सारे वीडियोज हैं। हाँ, वहां पे काफी वीडियोज हैं उसके। थैंक यू अथर, थैंक यू, आपने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू। अरे पंचाल, हम यूट्यूब का चैनल है, हमने लिंक भेजा था वो। सी दिस फॉर योर प्रैक्टिस ओनली। हाँ खालिदा, आपने पहले से किया हुआ, आई नो। थैंक यू पंचाल। मंथन थैंक यू अंजलि। या सैयद सपूरा थैंक यू, आई नो। अपेक्षा, वैष्णवी। गाइज इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। और आपने जितने लोगों ने यस बोला है, वी विल सेंड देम द लिंक फॉर कंप्लीट कोर्स ज्वाइनिंग। थैंक यू रोहित, थैंक यू। तो आपके पास हमारे ऑफिस से आज और कल में लिंक जाएगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के लिए। आप उस लिंक के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑफिस की हमारी टीम आपके साथ कम्युनिकेट करेगी उसके लिए। फिर हम लोग फुल कोर्स। Few of the students are joining now. I don't know why. ज्वाइनिंग नाउ मीन्स, अच्छा अभी नए आ रहे हैं क्या? They are saying कि they need like I need to permit with the admit, right? So I'm getting a message also of admit so and so person. तो एडमिट तो कर ही लीजिए कम से कम। आप उनको हम बता दें कि कल से हमारा सेशन, सब लोग ध्यान से सुनिए, सेशन हमारा 11 बजे से होता है, 11 से 12 का ऑफिशियल टाइम है।
फिर हम लोग 12 बजे के आगे डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं और हम आप लोगों से थोड़ी बातें करते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम क्लास में होते हैं तो बातें अच्छी होती है। अभी तो हम बातें नहीं कर पाते ना, तो हम 10-5 मिनट का टाइम रखते हैं आपसे बात करने के लिए। रोहित, हाँ सर, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हम्म। एक बात तो है, क्लास का बदमाश हीरो तू ही है, हमें लग रहा है। सेल्फी से पहले उसने हेयर स्टाइल किया था सर। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा कि उसको बड़ी टेंशन, शादी के लिए थोड़ी फोटो ले रहे थे भेजने के लिए, है? देखो पंचाल तुम्हारा फीडबैक दे रहा है, कह रहा है कि आप क्लास में ऐसे ही करते हो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। तो आप जो कल भी जो पूरे टाइम अवेलेबल रहेगा, तो हम लोग करके आपको सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको भेजेंगे यहाँ से। और कम से कम उसमें 2 दिन का अटेंडेंस तो मैंडेटरी चाहिए हमें। अब जो लोग आज ज्वाइन हुए हैं वो कल भी अवेलेबल रहेंगे, जो कल थे वो आज थे और कल भी रहेंगे, उनको तो खैर मिल ही रहा है। तो आप कम से कम आपकी अटेंडेंस पूरी रहनी चाहिए, देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट, कि आपने 3 दिन वेबिनार में पढ़ाई किया है। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट they'll be getting. या यू विल गेट द पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। चलो अपने अपने सवाल पूछो जल्दी जल्दी। शिवाजी, अच्छा ठीक है, अब सवाल नहीं है तो आप लोग धीरे धीरे प्रस्थान कर सकते हैं यहां से। खालिदा, कलर कैसे चेंज करना है? ठीक है, कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हम लिख लिए आपका सवाल। वैसे आप ग्रिड पे जाके राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं कलर चेंज करने के, एट्रीब्यूट्स में, यहां जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं। देखो यहां से आप पिक्चर ले सकते हो, यहां से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, चेंज एंटिटी कलर, यहां से आप जाके कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ है चेंज फॉन्ट, चेंज बैकग्राउंड कलर, आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। देखो ये चेंज हो गया। चेंज एंटिटी कलर, बीम्स को अगर आपको ऐसा बनाना है, ये तो है ही, प्लेट अगर आपकी ऐसी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर चेंज करना है तो देखो प्लेट को हमने चेंज कर दिया, अप्लाई करके ओके कर दिया, देखो प्लेट का कलर चेंज हो गया कि नहीं? हो गया ना खालिदा? पंचाल, डिजिटल सेल्फी मिल सकती है क्या? ज्योति मैम से रिक्वेस्ट करो अगर मिल जाए तो, वैसे हम आपको पूरा लेक्चर दे देंगे। अरे श्रेया, नहीं ठीक है ठीक है। रोहित, सेल्फी तुम्हें भी मिलेगी। चलिए धीरे 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 आप लोग निकलिए। किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं।